वीडियो के टाइटल और थंबनेल से इतना तो क्लियर हो गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, लेकिन जो चीज़ नहीं क्लियर हुई होगी वो ये है कि क्यों। आई नो यू गाइज ऑल्सो नो दैट हियर वी गो ऑलरेडी हो गया है एंड वी माइट जस्ट साइन McAllister, and that would be a wonderful signing. You know for how long we as Liverpool fans have been crying for a midfielder, and that is finally happening. I don't know, I don't want to jinx it कि पता नहीं कितने सारे midfielders हम sign कर लेंगे, क्या होगा क्या नहीं, but जो है उसी के बारे में बात करेंगे. But it just got me very curious कि कितने Argentinian players have played for Liverpool, and you will not believe the sort of answers that I got. The answers as in my head, and through googling everything that I could about this thought that I had कि कितने Argentinian players आज तक Liverpool के लिए खेले हैं, and there were many surprises that I got. But we'll not waste any more time and get into the video right now. But before doing that, in case you know who was the first Argentinian player that Liverpool signed ever, don't forget to comment down below and हम सबको बताओ कि तुमको already पता था इस चीज़ के बारे में in the video that we're going to talk about right now. नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? I hope well and good. You know what, that is the most important thing that matters. तो McAllister से पहले I thought let's just get familiar with the Argentinian players that Liverpool had. So first Argentinian player that Liverpool ever signed, बात करेंगे, करते हैं बात. Just give me 2 minutes. You know what surprised me the most while I was doing the research on it? It was that we have signed almost 6 Argentinian players और 6 के 6 एक ही मैनेजर ने साइन किए थे. Guess the manager. Of course it was Rafa Benitez. It was nobody else but Rafa Benitez who signed all the Argentinian players. Just imagine this stat. That's what I was saying, it's going to shock you when you get to know the sort of stat that I had and while I was reading about it. The first player that Liverpool ever signed was Pellegrino. So that happened back in 2005. So he was already playing at Valencia जहाँ पे Rafa Benitez manager थे. तो जब Rafa Benitez इधर आए वैसे ही Pellegrino भी इधर आ गए. I'm not saying there's a connection or anything. I'm just making you understand in a form of story कि शायद ये हुआ होगा कि अरे Benitez is going, I'm also going to Liverpool. So jokes apart, so he was a free signing to Liverpool and it was just a 6-month contract that we had with this player. And by the way, he just had like 13 appearances for the club. Second player जिन्होंने Liverpool के लिए sign किया वो है Gabriel Paletta. Now he's also a centre back, so that happened in 2006 and 7. He had total 8 appearances for the club, जिसमें कि एक गोल भी मारा है उन्होंने Liverpool के लिए. तो इनका सीन क्या था कि इनके जो पेरेंट्स थे वो इटालियन डिसेंट के थे, तो जिसकी वजह से अंडर 20 तक ही प्लेड फॉर अर्जेंटीना, लेकिन उसके बाद ही स्टार्टेड प्लेइंग फॉर इटली. तो इन अ वे ठीक है, अर्जेंटीना के लिए खेला है कुछ टाइम के लिए, बट देन ही शिफ्टेड टू इटली. सो दैट्स हाउ इट इज. 4 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, मतलब अच्छा डील था. लेकिन उसके बाद बेनिटेज वांटेड कि यार तुम थोड़ा टाइम लोन में जाओ, एक्सपीरियंस गैदर करो, फिर आके वापस से खेलना. देन ही वेंट टू बोका जूनियर्स. उसके ऊपर भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है, वो एक्सप्लेन होगी थर्ड प्लेयर के बारे में जब बात करेंगे, हु इज एमिलियानो इंसुआ. ही वॉज अ लेफ्ट बैक हु साइंड विद लिवरपूल इन 2007, लेकिन उससे पहले ये 18 मंथ लोन पीरियड पे लिवरपूल में आए थे फ्रॉम बोका जूनियर्स. 2007 में जनवरी में इनका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था. उसके बाद अगस्त 2007 में परमानेंट डील हो गया था, लाइक ही केम टू लिवरपूल फाइनली परमानेंटली. इनके कुछ 62 अपीयरेंसेस रहे हैं लिवरपूल के लिए, जिसमें कि एक गोल भी मारा है इन्होंने. ना 2007 के बारे में जो मैं बात कर रही थी कि इन्होंने उस टाइम पे परमानेंट डील साइन किया था लिवरपूल के साथ, उस टाइम पे बोका जूनियर्स के साथ एक स्विच डील हो गया था जिसमें पेलेटा चले गए थे और इंसुआ आ गए थे. सो दैट थिंग हैपेंड. दैट्स व्हाई आई सेइंग कि पेलेटा के बारे में बताऊंगी व्हाई ही वेंट टू बोका जूनियर्स. सो दैट्स व्हाट हैपेंड. इन्होंने प्रीमियर रिजर्व लीग में लिवरपूल यंगस्टर्स के साथ काफ़ी खेला है एंड ही डिड वेरी गुड. बेनिटेज वॉज कम्प्लीटली इम्प्रेस्ड विद हिम. उसके बाद बेनिटेज ने 3 साल का डील तो देना ही था जब इतना इम्प्रेस हो ही गए थे. देन फाइनली ही लेफ्ट लिवरपूल इन 2011. अगला प्लेयर जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, द फोर्थ वन, काफ़ी लोगों को उनके बारे में पता होगा, एंड दैट इज हावियर मास्चेरानो. मास्चेरानो डिफेंसिव मिडफील्डर थे. ऑलमोस्ट 139 अपीयरेंसेस थी फॉर लिवरपूल, जिसमें कि 2 गोल्स उन्होंने मारे थे. 2007 के बिगिनिंग में ही ये आ गए थे ऑन लोन और उन्होंने यूएफए चैंपियंस लीग फाइनल में भी पार्ट लिया था, बट अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट दैट वन. उसके बाद 2008 में 4 ईयर परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एंड बेनिटेज ने इनको मॉन्स्टर ऑफ अ प्लेयर कहा था. वी ऑल अग्री. ही वॉज अ सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर जो कि मिडफील्ड से गोल्स निकाल के देते थे, कभी 20 यार्ड से गोल, कभी 30 यार्ड से गोल. एंड आई एम नॉट सेइंग ही हैड मेनी गोल्स इन नंबर्स, लेकिन जो भी उन्होंने 2-3 गोल्स मारे हैं लिवरपूल के लिए, दैट वाज ऑल ऑफ 20 यार्ड 30 यार्ड डिस्टेंस पे जो गोल्स मारे हैं. एंड दैट्स समथिंग दैट वी रिक्वायर नाउ. वी रिक्वायर दैट डेस्परेटली. बाय द वे काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक पर्सन थे. तो इनका वर्स्ट डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड रहा है 2009 एंड 10 प्रीमियर लीग सीजन में. 7 येलो और 2 रेड कार्ड मिले थे उनको उस सीजन में. तो 2010 के वर्ल्ड कप के बाद व्हेन ही केम बैक तो मैनेजर चेंज हो गए थे, तो इट वाज नो मोर बेनिटेज, बट
रॉय हॉटसन। तो उस टाइम पे हॉटसन पूरा टाइम ट्राई करते हैं इनको कॉल करने का, मैसेज करने का कि यू नो व्हाट, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू एंड इट विल बी क्वाइट नाइस। मतलब दैट्स हाउ ही वुड बी मैसेजिंग, यू नो। मेरे दिमाग में तो इट्स ऑलवेज वेरी लाइक प्रॉपर कॉन्वर्सेशन दैट दे मस्ट बी हैविंग कि लिसन, यू नो, आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर द सीजन, दैट्स व्हाट हॉटसन माइट बी सेइंग। एंड then guess what, मास्चेरानो ने कोई भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया एंड he just wanted to leave the club and you know he went to Barcelona. इनके डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड के बारे में तो हमने ऑलरेडी बात की है। तो इनका जो फर्स्ट गेम था दैट हैपेंड एट ओल्ड ट्रैफर्ड इन 2008 और वहाँ इनको काफ़ी अर्ली एक टैकल की वजह से एक येलो कार्ड मिल गया। उसके बाद क्या हुआ ना, टॉरेस को भी येलो कार्ड दिया होगा और उस चीज़ को प्रोटेस्ट करने के लिए ही वॉज गोइंग टू रेफरी, मतलब भाग रहे थे रेफरी के पास एंड रेफरी ने इनको भी येलो कार्ड दिखा दिया, सेकंड येलो कार्ड ऑफ द गेम। सो ऑब्वियसली ही हैड टू लीव एंड दैट वाज अ रेड कार्ड, सो ही हैड टू लीव बट ही डिड नॉट लीव। तो उनको मतलब पिच से बाहर निकालने के लिए जेरार्ड एंड जावी अलोंसो आए कि भाई तू चला जा, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट हैपेंस, यू नो, शिट हैपेंस इन द गेम, जस्ट लीव मैन, जस्ट लीव, एंड ही वाज नॉट गोइंग। उसके बाद राफा बेनिटेज ऑल्सो केम कि मतलब बाहर आए, पिच पे आ गए कि तू चल, कोई बात नहीं, तू चल, थिंग्स लाइक दैट हैपन, इट्स ओके, विच बाय द वे शुड नॉट बी अ येलो कार्ड जो रेफरी ने दिया, यू नो, व्हेन ही केम टुवर्ड्स हिम। आज के टाइम पे वो पक्का येलो ना होता बट उस टाइम पे वो दिया गया था। फाइनली इट वाज पीटर क्राउच जो उनको वहाँ से लेके गए कि चल भाई बस हो गया, लेट इट बी, इट्स ओके, दैट हैपेंस। सो थिंग्स लाइक दैट हैपेंड बैक देन अ लॉट, सो दैट्स व्हाट हैपेंड विद मास्चेरानो एज वेल। सो देयर वाज अ लॉट टू टॉक अबाउट हिम, व्हाई नॉट, वी हैड टू टॉक अ लॉट अबाउट हिम। तो नेक्स्ट ईयर व्हेन ही वेंट टू बार्सिलोना, वहाँ जाके 2011 में ही वन द चैम्पियंस लीग एंड फिर there was a speech which was really not meant to be for us because फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। तो he was saying कि the way I left Liverpool, you know, I know many Liverpool fans would be sad about it, but this trophy, this win is even for them, but ठीक है यार, we are happy for you, but लिवरपूल का नामो निशान कहीं नहीं होगा when you won that Champions League with other club, so that doesn't matter, but yeah, that happened. Now we're going to talk about the fifth Argentinian that Liverpool signed, that was Sebastian Leto. इनके बारे में भी एक बहुत ही peculiar चीज़ है। तो 2007 में बेनिटेज ने इनको भी साइन किया, ये एक फॉरवर्ड थे। एंड लेट्स टॉक अबाउट द नंबर ऑफ गेम्स ही हैड फॉर प्रीमियर लीग, that's 0. He did not play a Premier League game ever. हाँ, एक चैम्पियंस लीग एंड एक कुछ लीग कप गेम्स जो हैं वो सब खेला था इन्होंने, दैट टू 3 games, टोटल 3 games ही हैड फॉर लिवरपूल और मे बी 4, दैट्स इट। तो 4 अपीयरेंसेस के बाद ही हैड टू गो। यू माइट आस्क वाई, कि यू साइंड अ फॉरवर्ड एंड यू नो प्रीमियर लीग गेम में खेलने को भी नहीं मिला, वाई डिड दैट हैपन? सो द आंसर इज कुछ पासपोर्ट के साथ प्रॉब्लम हुआ तो वर्क परमिट नहीं मिला और इस चीज़ को बेनिटेज ने बहुत क्रिटिसाइज किया था, सो वी हैड टू लेट गो ऑफ दिस प्लेयर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 6th प्लेयर दैट लिवरपूल साइंड इन, दैट इज मैक्सी रॉड्रिगेज। ही प्लेड एट लिवरपूल फॉर 2 years, 2010 में आए, 2012 में चले गए, लेकिन ये 2 साल में काफ़ी डेकोरेटेड करियर रहा है इनका विद लिवरपूल। ही वॉज अ फ्री ट्रांसफर टू लिवरपूल, 3.5 year डील का साइन हुआ था। ही हैड 73 अपीयरेंसेस एंड 17 गोल्स फॉर लिवरपूल एंड बेनिटेज ने बोला था कि ही इज काफ़ी कंफर्टेबल ऑन द बॉल। 2010-11 का सीजन इनका बेस्ट रहा था जिसमें कि 10 लीग गोल्स इन्होंने मारे थे। एंड बाकी वी नो अबाउट मैक्सी रॉड्रिगेज, हाउ हिज करियर वॉज डिफाइंड एट लिवरपूल, लेकिन देन आफ्टर 2 years ही हैड टू लीव एंड ही लेफ्ट लिवरपूल। Now, वो घड़ी आ गई है when you're going to talk about the player, the Argentinian player, the World Cup winner that we might just sign, because I know that's happening, क्योंकि here we go by Fabrizio Romano हो गया है, आज मेडिकल चल रहा है। When I upload the video, I hope तब तक लिवरपूल का वीडियो ना आए because I want to upload this first and then Liverpool should announce, you know, like here we go, here is McAllister, you wanted him, here he is, but I'm quite excited to see the video। मतलब I get very excited to see the announcement videos। अब तक मुझे कोनाटे का वीडियो बहुत प्यारा लगा था। You also comment down below and let me know कि तुमको सबसे प्यारा वीडियो किसका लगा दिया अनाउंसमेंट वीडियो। Now, I'm not boasting about anything, but you know, Liverpool is Liverpool when it comes to a choice for a player कि वो चैम्पियंस लीग खेलना पसंद करेगा या यूरोपा लीग, but he would prefer a Europa League team over any other club that is playing in Champions League. So that just gives me a lot of happiness. Well, it's nice to know, you know, people still prefer Liverpool over any other club. I'm just saying that, you know, just putting it out there. Why McAllister? What he can do at Liverpool? You know, what change he can bring in Liverpool's midfield? Number one thing, he's very young. We need a young player in Liverpool. I always told you one thing, that we need the youth energy in that midfield so that they can run at the pace that is needed. Because you know, when it comes to Jurgen Klopp's players or Jurgen Klopp's midfielders, they need to attack, they need to defend, they need to, you know, be very good at taking shots, they need to be very good at tackling, so they need to be a very all-rounder sort of a player. And McAllister खुद बोलता है खुद को कि ना ही वो clear number 6 है, ना ही number 8 है, ना ही number 10 है, but he's a combination of
all three. Whether he can play at any position that needs to be required in the team, that is needed in the team. And Jurgen Klopp is sort of a manager जिसको actually में multi talented players चाहिए कि मिलनर जैसे हमको आज फॉरवर्ड की जरूरत है तो फॉरवर्ड बन जाओ, हमको आज डिफेंडर की जरूरत डिफेंडर बन जाओ, आज हमको मिडफील्डर की जरूरत मिडफील्डर बन जाओ. So sort of like that. Plus, we have all seen what he has done at Brighton. We know it's not just him, but the entire team. What Brighton has done is brilliant. But especially McAllister, the energy, the quality that he possesses in the midfield, I think that is something that we would be needing. Plus, he has a lot of Premier League experience, so that will add to anything that we are talking about here. Because when you play in Premier League, it takes time to get settled here. We know what happened with Keita. यार थोड़ा time लग जाता है, but hopefully things go fine and he stays fit. बस जो भी है सब अच्छे से हो जाए. अच्छी चीज़ क्या है ना, early signing है, तो जितना भी प्री सीजन होगा उसको सब ट्रेन करने को मिलेगा. He will get to know what the manager demands and everything, and सारे प्लेयर्स को जानना मिल जाएगा. So I think that will be quite good. 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात हो रही है. कुछ 45 to 55 मिलियन के बीच में कोई क्लॉज रहा है, रिलीज क्लॉज रहा है, which is very cheap. I feel it's good. It's good for a player like him, and I am sure that we cannot go for this 80 to 90 pounds वाले player. So it's fine. जितना हमको पता है इतना है, लेकिन एक अच्छा player आ रहा है तो that is what is needed, and I am satisfied with it. By the way, I just wanted to put it out there. So I don't know how many of you have seen Schitt's Creek. So there is an Alexis as well, but she's a woman. That's okay. But the name is Alexis. And now, there's a song, I'm a little bit Alexis. I thought, why not put it out there? And whenever Alexis does very good, McAllister does very good with Liverpool, the cheer, this is the cheer we can say, I'm a little bit Alexis. We can do that. We can put it out there and just have that chant, have that cheer for him, and that will be fun. That will be so much fun. I'm already planning things, like just imagining कि वहाँ जाके कौन से chants बनेंगे, नए क्या होगा क्या नहीं. It's all very exciting. I know we are playing in Europa. I know that. I know. So the other club fans do not mention it and remind me of this fact. I know we are playing in Europa League, but it's okay. हम हर जगह से कुछ ना कुछ तो जीत के आ ही जाते हैं, and we will do that. Hopefully we have a good spell even here, and I'm just excited about it because we need to rebuild. We need these players to have enough experience so that we do not embarrass ourselves at Champions League the next season we play, because I'm confident we can do that. Just signings kar le, that's it. Alright, that is it from me today. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.